Neither I have been kind, nor I have been harsh, but I have been annoyed definitely sometimes. But whatever you have written on the paper, that is final. I have never objected to that one, and that is the only quality or my good habit that I have no line on my heart. Although Sir, I have taught for, you will be surprised to know that 69 years. mashallah. MashaAllah. MashaAllah. I started from Gujranwala. जहाँ तालीम थी नहीं वहाँ पहलवानों का शहर था शैतानी ज्यादा करते थे मास्टर कम थे Sir, उसके बाद मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में चला गया sir, हाँ मैं कोशिश करता रहा कि भाई स्कॉलरशिप मिल जाए गरीबों को कहाँ मिलता है तो मेहनत करते रहे तो 58 महीने मुझे स्कॉलरशिप मिल गया टाउन एजी कमीशन से अच्छा, तो मैं फिर इंपीरियल कॉलेज में चला गया कहाँ अच्छा, इंपीरियल कॉलेज और कहाँ मैं एक गांव छोटे से गांव का स्टूडेंट वो जो अल्लाह ताला की मेहरबानी मुझ पे हुई है ना उसने sir, हमारी सारी उम्र के लिए मेरा कॉन्फिडेंस जो है ना इतना मजबूत कर दिया है कि उसने मुझे सारी उम्र मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैला sir, तो अल्लाह कहाँ वो छोटी सी जगह कि हमारा प्राइमरी स्कूल तक थी सिर्फ हमारी हद तो अल्लाह ने मौका दिया बढ़ते जेब में कभी पैसा नहीं होता था तो sir, बढ़ते इंपीरियल कॉलेज में चले जाए जहाँ लोग तरसते हैं कि अल्लाह हमें दाखिला कर दे वहाँ पे तो sir, आई वाज फॉर्चुनेट टू हैव यस a teacher like Professor Salam, who was a Nobel Prize winner and a well-known authority on mathematics and physics. Similarly, recently, one of my teachers has gotten another Nobel Prize, Dr. Higgs. He was at that time a young man coming straight away from college, getting a PhD, an extremely noble person, just like us. His age will be just like his students. sir, But now, look at his patience. He has got PhD after 50, Nobel Prize after 50 years. hmm, बिल्कुल He has, I am just surprised at his patience. And in sir, 50 years, and he was a very noble, extremely noble and humble person. sir, The junior most teacher in the Department of Mathematics and Physics. And he belonged to the group of a member of the research group of Professor Saddam, the junior most. And whatever research he did, on that basis he got Nobel Prize after 50 years. hmm, Anyway, still now alive. God bless him. So this is all. Then I worked for 1 year. I completed my PhD from Imperial College. Then I worked with the Tower Energy Commission of the UK. sir, And I learned computer when it was used only for mathematics research. There was one in London, and that was the London University. sir, And only the research scholars used to get half an hour, and tape input was used. And it was only just mathematical calculations. And sir, at that time, you will be surprised to know this, that every teacher has a calculating machine at his table in Imperial College. There was no computer in the Imperial College. sir, In the whole of London, there was only one computer with the London University, and that was just Bacha Jamura compared to the today's computers. And there, only the research scholars used to get time by appointment at the most half an hour. That's it. After my, then I went to the as a subject scholar with the Government Education, and there I have seen people working like dervishes, and that क्या कह thing रहे has a lot of impact in my life. There I have found that the head of the research institute where 100 top scientists are working. He is standing in a row at the lunchtime,
and doing his own service, which we can never think of in this country. And I have never seen anybody going in anybody's office for gupshup. If you have a job, go to the person concerned, consult him and come back. And I have never seen anybody being served tea in his office. The Ramakrishna Commission. And another thing is that if once when I was in they gave me a document which is as a reference book. And when they gave me the assignment that we have done, this is what we want you to do, because this is that we want to go further. And therefore, that information is not there. They told me how to use the computer. And then I prepared then they gave me the reference books also. One of the reference books which they used to use, all this institution was using as a reference book. First, they gave me that please study this one. Sir. And then they told me how to use the computer also. My habit is whenever I do any job, I try to understand it before I proceed. So for my own understanding, I started checking that book article by article and comparing the result with the computer. A stage came that my result did not tally with one of their articles. And I pointed out to my design officer because he was a in-go between the head of the department, head of the division, and myself, because I was Bacha Jamura more or less. But he told me, I told him that this is the flaw, error in this book which I have noted. He told me that we are in competition with each other, please be careful. He is a well-known authority on the subject. And if it proves wrong, it will be a great humiliation for us. So I told him, all right, I check it again. I checked it again and I found that flaw is there. They pointed out to that person, he was the head of the division and the authority on the subject. They told him that my Bacha Jamura has pointed out that this article of yours is not right. What happens one day when I came to the office at about 8 o'clock in the morning, he came after me and came to my office and sat in front of my chair, and I saluted him. I said, good morning, sir. And I asked him, sir, can I help you? What is the matter? Because a big man coming in the office of a research scholar right in the morning. So don't worry, my son, I have a little query. You show me what you have seen. So I told him that this is the disparity which I am finding. My computer results don't tally with what you have written over there. Sir. The first thing he did was because I was a new person, I could use the computer wrongly also. First, he went through my computer runs, all of them. And then he asked me what you have done. After that, satisfying himself, he said, Mr. Amin, you are right. Now, this is something that in our country, nobody can tolerate this one. If I had been here, it must have been my last day in that department. Because you can't dare to point out your boss that what you are saying, there is a mistake over there. And these are the few things which has molded my life in practically. So I have what lessons I have learned over there. I
I have followed them throughout my life. Whatever job I have accepted, I have put my best. It may be menial job, it may be higher job, I have never bothered about. Once I have made a commitment, I have put my best effort in doing it. And the result is that I was at engineering university. I passed my time well. Air Force, I have devoted maximum time to the Air Force. MashaAllah. And what little I could do, I have contributed as my duty, not as a favor. And inshallah, by the grace of God, I have got a lot of respect from you people and from my colleague also, and from ways for our organization as well. All of you have given me a lot of respect. Although money-wise, I have always reviewing from hand to mouth, but outwardly, I have no grievance about Air Force. And after retirement, I have served in local institutions in the Karachi city also. There also, I have passed my time well. And I have always honest in my work. That is the only quality I have. Work may be a lower level, work may be a higher level. I have never differentiated between the two. Whatever has come to me, I have put my best. And by the grace of God, I have taught the students for 69 years, but I have no grievance of any kind that they have done injustice to anyone. And that is why I feel very happy and healthy even today. So that is all what I have to say to you now. It is your turn. If you want to ask me anything, by all means, most welcome. Sir, Assalamu alaikum. This is Shahid Hamid. This is Shahid Hamid, sir. Aapka bacha jumhura. That was your pet word. Yeah, way back. Sir, way back in 66, young Amin Saab, and we were just children in front of you. और आपने हमारे कान में खींचे हुए हैं, चॉक्स भी मारे हुए हैं हमें. I still remember. But I can assure you, sir, जो आपसे सीखा हमने, वो अभी तक हमारे ऐसा इंस्टिल किया आपने, ऐसे आप पढ़ाते थे माशाल्लाह. ये आपकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी थी, जो I must say कि you are a blessing to our country. As a matter of fact, a person जिसकी कोई personal कोई वो नहीं थी. It was all for the country and the way you taught. एक वो कहते हैं ना real उस्ताद, वो आप वो है, जिसने अपने दिल से पढ़ाया, और बल्कि आप कहते होते थे कुछ चीज समझ ना आए तो फिर आके में से और आप चले जाते थे आपके पास. हमें कभी हेसिटेशन नहीं रही सर. I am talking about, I am from G2 sir, second course. So हम सब लोग I think till to date जितना respect आपकी है, और of course there were other also there, but आपकी सबसे ज़्यादा I think my friends will bear me out, respect आपकी थी. And जो अल्लाह ताला आपको सेहत और ज़िंदगी दे सर. And आप ये बताइए सर कि उस ज़माने में we had Americans, तो आपकी क्या equation थी with Blacklock and Thomas and Boyle and so on and so forth? Yeah. देखिए, अमेरिकन से मैंने बहुत कुछ सीखा. अब देखिए ना, अब पहला हमारा प्रेसिडेंट जो था ना, कमांडेंट, वो थे कर्नल ब्लेक लॉक. जी हाँ सर. आप हैरान होंगे जब भी उसको कहीं हेडक्वार्टर से कोई लेटर आया जिसकी इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं है, तो वो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो कंसर्न होता था ना, उसके दफ्तर में खुद आ जाया करता था. हेलो मिस्टर अमीन. तो वहाँ बैठ के दो चार बातें की, मतलब की बात की, जाके दफ्तर में बैठ के उन्हें खत लिख दिया, हमें पता ही नहीं. 4 साल कमांडेंट रहा, ना उसने चाय कभी पिलाई और ना कभी पी.
अच्छा. Except our formal opinions. This is something which don't have at all in this country. काम से बात कर, आप काम से कभी कभी बताता था, कभी आप खुद आ जाया करता था दफ्तर में, और कभी कभी बताता था तो ना चाहो उसने कभी पलाई ना कभी पी. ये दिस वाज वेरी वेरी अनयूजुअल. और अमेरिकन अफसर भी किसी ने वर्किंग आवर्स में ना कभी चाय हमें पिलाई, ना कभी पी, ना कभी डिमांड की. But this is true about all American teachers that we have. और एक इंटरेस्टिंग मैं वाकया आपको बताऊं को कर्नल लेथ साहब, our first head of the department of he was a flyer also, and he used to speak very little. When I joined the PF college, he used to write us note what is to be done in mathematics. I went to the principal. मैंने कहा सर, अगर मैं हेड के काबिल नहीं हूँ तो फिर तो आपको मुझे हेड बनाना नहीं चाहिए था, और मुझे नोट नहीं लिखने चाहिए. नोट अगर मुझे हेड समझते हैं तो मुझे नोट नहीं लिखा करें प्लीज. मुझे बता दें करना क्या है. अगर मैं ना करूं तो फिर आपका हक बनता है मुझे बताने का कि दिस इज द वे टू डू इट. वो जो था कर्नल लेथ साहब, वो मुझे लेटर लिखा करता था, इसको ये चीज को ऐसे करो, इसको ऐसे करो. तो उसके बाद मैंने कहा जी ये मुझे आप ज़बानी बता दिया करें कि आप किस साइड का काम करना चाहते हैं, और मुझे मौका दें अगर आपने हेड बनाया है मुझे, क्योंकि आई वाज द ओनली हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आउट ऑफ द पाकिस्तानी. तो मैं नया नया पीएचडी करके आया था, और कोई पीएचडी था नहीं, तो उन्होंने मुझे हेड बना दिया. पता तो फिर उन्होंने ये कि उन्होंने नोट बंद कर दिए. अब देखिए उनकी ग्रेटनेस की बात करने लगा हूँ. एक बार कर्नल लेथ साहब से ऐसे बात हो रही थी, तो इसी में ये टॉपिक आ गया कि भाई, तो उसने खुद कहा कि भाई देखिए बात ये है कि आई एम सॉरी आई यूज्ड टू राइट नोट टू यू. रीजन वाज दैट योर predecessors did not know what to do, and we used to tell them what to do, and we never knew that there are people who can do the job well also without any guidance. So I'm sorry for writing you the notes, because that is what the position of your predecessor, which forced us to write the notes to do the job. And because you are doing your job well, so I'm sorry for it. आप यहाँ है किसी की हिम्मत यहाँ कहने की है? नहीं है. Only Baba Amin can say it. मैंने कहा इस अपने मुल्क में ये किसी की हिम्मत है? वो नोट लिखा करता था, उसे मुझे फिर कहा I'm sorry for this, क्योंकि हमें तो जो पहले आपके साथ से कोई काम करते थे वो हमारी मर्जी के मुताबिक काम नहीं करते थे, हम उनको नोट लिखते थे. आपने तो अपने काम अच्छा करते हैं, हमें कहने की जरूरत नहीं है. I'm sorry for writing the notes. तो उनमें ये हिम्मत है. मेरा मतलब है कि मेरी यहाँ किसी की हिम्मत है कि वो अपनी गलती माने इतनी हाई पोजीशन में होते हुए? नहीं है. तो दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम अमेरिकन. अच्छा, दूसरी चीज ये, अगर आपका काम अच्छा हो रहा है ना, आपको आपकी दुम नहीं दबाएंगे. अगर कोई मामूली आपकी कमजोरी है तो आपको बातों बातों में ऐसे बता देंगे, बस आपकी इज्जत करेंगे. लेकिन अगर काम अच्छा नहीं करते तो आपको सलाम भी करेंगे, चाय भी बिठाएंगे, लेकिन कॉलेज से निकाल देंगे. और 2 पीएचडी उन्होंने कॉलेज से निकाल दिए. अपने जो नखरे करते थे, उन्होंने कहा सीएनसी को कि मियाँ ये पीएचडी पे एतराज हम नहीं करते, आप इनको विड्रा कर लें, ये हमारी मर्जी के मुताबिक काम नहीं करते. एयरफोर्स ने कहा कि ये तो सीएनसी सेलेक्ट करके लाया हुआ है बाहर से. उन्होंने कहा जी यहाँ
नायाब आप रखे हैं फोर्स में, हम हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हम इसको एक कॉलेज में पढ़ाने के काबिल नहीं है हमारे साथ। तो हमने 2 PhD उन्होंने कॉलेज से निकाल दिए। क्या किसी की हिम्मत है यहाँ पे? तो लोगों ने फिर CNC तक शिकायत की। तो उन्होंने कहा कि अगर आपने अपनी मर्जी का कॉलेज चलाना है तो हमें आप वापस भेज दें, और अगर हमें आपने ले जाना है हम वो कॉलेज बना दें जो हमारा इमेज है कॉलेज का। तो लिहाजा I was the first head of the department, and I earned respect because of my behavior, because of my doing my honest job. That's all. Absolutely. But on the other hand, it was an interesting thing also. That American gave me a lot of respect. You gave me a lot of respect. Education department never gave me the respect. This is what I'm telling you. Education department of the AP have never accepted me. They always treated me as an outsider. You were outsider. That does not matter, because if my job is well done, environment which I'm working is healthy, I don't mind. You care, I don't care for you. सर अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट ऐसे सर, आपने जो अभी बात की ना कि किसी में हिम्मत है, तो सर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपने ऐसे शागिर्द पैदा किए जिनमें अब हिम्मत है और थी। ये आप लोगों की वजह से है। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आप लोगों ने सिखाया हुआ है हमें सर, एंड दैट इज द रीजन। आपको देख के ही वो ऐसे लगता है कि जैसे कल ये सारी बातें हुई हों, पर माशाल्लाह सर, यू स्टूड अप against those Americans too. They're very fine people. They had their traditions, everything. हमें याद है, पर जैसे आप लोगों ने किया सर, हमें वैल्यूज और चीजों पे पाबंद रखा और हमें इंस्पायर किया। तो मैं आपको बता सकता हूँ सर, मोस्ट ऑफ अस, हम भी वही हैं, उसी किस्म के ही हैं कि बोल देते थे हम। ये नहीं कि वो आई रिमेम्बर CEO आपको कहे कि जुमा 8 दिन हुए हैं अभी आए हो और बोलना शुरू हो गए हो, तो दिल तो आता था कि अमीन साहब जैसे लोगों ने हमें सिखाया हुआ है कि जो सही बात है जरूर बोलो। मतलब ये हमारी आदत मेरी भी यही है कि अगर बात नाराज होने वाला तो उसको पोलाइटली कह दो, कभी करे ना करे अल्लाह ना करे। सर अस्सलाम वालेकुम। सर अस्सलाम वालेकुम। मैं सर सलीम रहमान बोल रहा हूँ, मैं भी G2 कोर्स से। बल्कि आपकी बात मैं और शायद दोनों हम ये कहेंगे कि आप लोगों ने हमें बोलने की आदत से एक्चुअली लोग कहते थे कि खराब कर दिया था। हम जब ग्रेजुएट होके गए ना तो नए आपको पता ही सर, G1 G2 तो पायनियर कोर्सेज थे आपके, और आप लोगों के खास शागिर्द थे। और हम लोग जब नए फिर ग्रेजुएट होके एयरफोर्स के अंदर गए, तो जो लोग पुराने मेंटेनेंस ऑफिसर्स की आदत थी, उन्होंने कहा भाई एक कड़े आ गए ना ये तो किसी दिन काफी जो फर्स्ट एंट्रीज कही है उनको काफी रेजिस्टेंस करना पड़ा। बट एज शायद सोचने आने में काफी हिम्मत से जस्ट करना पड़ा। मैंने कमांडर का रैंक में गया, मुझे सलाम नहीं करते थे, मुंह दूसरी तरफ कर देते थे। जैसे शायद ने कहा कि आप लोगों की तरबियत हमें it took us a long way, including being very bold and upright and able to talk the truth about everything. सर एक छोटा सा मेरा सवाल है कि CAE was doing very well in Kurangi, and then of course it got shifted to Risalpur. तो आपके साथ हमारे एक दो और अच्छे इंस्ट्रक्टर्स थे, अजीज साहब, मैं कहता हूँ जी बड़े नेक भट्ट साहब, भट्ट साहब,
तो इनसे इतना हार्ड वर्किंग आदमी मैंने नहीं देखा। Absolutely, no doubt. तो ये वो भी आजकल लाहौर आपका में मेरे शागिर्द था। बिल्कुल, और आज लाहौर में मेरी कोई पिछले हफ्ते उनसे मुलाकात भी हुई है। अच्छा। माशाल्लाह दे डूइंग वेल। तो वन क्वेश्चन फॉर यू कि आप क्यों नहीं शिफ्ट हुए रसालपुर सर? वो इसलिए कि मेरी नौकरी तकरीबन खत्म ही थी, कुछ 6 महीने रह गए थे। तो मैंने कहा कि भाई मेरा सारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, मेरी बेगम बीमार रहती है, उसका इलाज मारता है, तो मुझे आप रिटायर कर देते। इस वजह से मैंने वो रिटायरमेंट ले ली। तो भाई चंद महीने रह गए हैं तो प्योरली पर्सनल रीजंस। तो वो एक पर्सनल रीजन थी और कोई वजह नहीं, और कोई वजह नहीं थी। आई हैव नो ग्रीवेंस विद द एयरफोर्स। एयरफोर्स ने हमें बड़ी रिस्पेक्ट थी जो हमारे पास था। हम अच्छा एक मैं और बात कहूँ जो एयरफोर्स ने मुझे दी है सर। एयरफोर्स जब तक मैं अमेरिका नहीं बना, मैं मैथ फिजिक्स के अलावा कुछ पढ़ा ही नहीं करता था। एयरफोर्स के आने के बाद मैंने जनरल स्टडी इतनी की है तो हेड बन गया, काम हल्का हो गया। तो काम भी इतना मतलब टीडियस नहीं था, दाएं हाथ का खेल था। जगह बनी हुई थी, टाइम मेरे पास था, लाइब्रेरी का मैं हेड बना हुआ था। तो मैंने मैक्सिमम किताबें वहां पे, उस किताबें भी सस्ती थी, बार बार से जो आती थी, बहुत किताबें खरीदी और पढ़ा भी बहुत है। जनरल नॉलेज जो मैं मुझे जो अच्छा इंसान बनाया है लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एयरफोर्स की कंट्रीब्यूशन है, फॉर विच आई एम वेरी ग्रेटफुल। वरना मैंने कभी मैथ और फिजिक्स के अलावा पहले कभी पढ़ा ही नहीं थी कुछ। और आज जो मेरे पास फिल्म है वो सारा एयरफोर्स की कंट्रीब्यूशन। एक तो ये है, दूसरा एयरफोर्स से मुझे जिंदा दुनिया में अपने डिपार्टमेंट का कारोबार एज ए प्रोफेशनल टीचिंग जो मेरी की है ना, ग्रूमिंग, उससे मुझे बड़ा फायदा दिया जो कि मेरी यूनिवर्सिटी में कभी भी ना होती। कि मुख्तलिफ लोगों से डील करना, मुख्तलिफ हालात में एडजस्ट करना और फिर डिपार्टमेंट चलाना, अच्छे से भी गुजर करना, बुरे से भी गुजर करना, ये एयरफोर्स से सीखा मैंने। वरना मैन मैनेजमेंट मुझे बिल्कुल बिल्कुल नहीं आती। सवाए पढ़ने लिखने के मुझे और कोई काम था ही नहीं। तो मुझे एज ए पर्सन जो फायदा हुआ एयरफोर्स से, वो कभी मैं यूनिवर्सिटी में रहता था ये कभी नहीं हो सकता था। फॉर विच आई फील वेरी वेरी ग्रेटफुल। अगर मैंने एयरफोर्स को दिया है, एयरफोर्स ने मुझे भी बड़ा खजाना दिया है इल्म का। And that has made me very confident about myself. Therefore, I have been able to adjust. I joined Navy College. I adjusted myself, did my job well. Then I joined the Swan Institute. I adjusted myself and did it well. Then I came. Now I came to Pete. जो मैंने अपनी एयरफोर्स का कॉलेज जो है, मैनेजमेंट साइंस का, कंप्यूटर साइंस का, इंजीनियरिंग का, आई हैव नो डिफिकल्टी इन एडजस्टमेंट। तो ये गई एजुकेशन जो है, ये एयरफोर्स से मुझे मिली है, जिसने मुझे अभी तक एक्टिव रखा है और जहां काम किया अच्छा किया है और बाजुद तरीके से वहां से आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एयरफोर्स ने जो मुझे एज ए ह्यूमन, एज ए प्रोफेशनल जो तालीम दी है ना, इट इज इनवैल्यूएबल फॉर मी। और उससे मुझे अभी तक सर्वाइव प्रोफेशनली जो लाइफ दी है, वो एयरफोर्स की कंट्रीब्यूशन। सर अस्सलाम वालेकुम, मैं G15 से हूँ सर, ग्रुप कैप्टन मंजर। आप हमारे भी उस्ताद हैं सर। आई जस्ट वांटेड टू नो व्हाट वाज योर फीलिंग व्हेन शी वाज डिपार्टिंग टू रसालपुर और colleagues like you, your colleagues? Actually, I think that was not good for the CAE as a technical institution. But it might have been the requirement of the Air Force. So there, I have no comment over there. But one thing I do say, कि अगर CAE यहाँ रहती तो वो टेक्निकल इंस्टीट्यूट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते मुमकिन है यूनिवर्सिटी बन जाती।
वो टेम्पो जो था वो रिसालपुर जाने में जाके थोड़ा सा ठंडा पड़ गया, लेकिन क्योंकि आपको तो भाई एयरफोर्स की सर्विस करनी थी तो लिहाजा प्राइमरी जॉब जो है उसके लिए फिर एडजस्ट करना पड़ता है, और एडजस्ट करना भी चाहिए। बाकी सारी दुनिया जो अपनी मर्जी के मुताबिक तो नहीं चलती, कुछ चीज़ें आपके मर्जी के मुताबिक चलती हैं, कुछ आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं चलती। लेकिन wherever you go, if you make commitment, do it well. आप देखना मेरी ट्रेनिंग जो थी एटॉमिक एनर्जी कमीशन के थ्रू हुई थी। 4 साल जो रिसर्च मैंने की वो एटॉमिक रिएक्टर के ऊपर की थी, लेकिन जब मैं आया हूँ वापस एयरफोर्स से PhD करके, तो उसका एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है वो सिर्फ दफ्तर भी था और कुछ नहीं था, तो मैं उसमें एडजस्ट नहीं कर पाया, तो मैं वापस यूनिवर्सिटी में चला गया। अब दिस वाज ए बिग डिसीजन फॉर मी कि भाई द बेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ हैज बीन रिसर्च इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। अब दोबारा जाके इंजीनियरिंग में क्या करोगे, मैथ पढ़ाओगे? तो वो मैंने कहा हाँ पढ़ाऊंगा, लेकिन मुझे फारग नहीं बैठा जाता यहाँ से। So that was the reason I left Atomic Energy Commission and went back to the university. और मैंने कभी हालांकि मैं भूल चुका था, जब मैं यूनिवर्सिटी गया हूँ तो मैं कहता या अल्लाह मैं क्या करूँ, वो तो जब मैं पढ़ाया सारा भूल गया। तो फिर बाद ने हादसा मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, तो कुछ महीने 2 महीने बाद आई वाज एक्टिव अगेन, दैट्स इट। तो हर चीज़ बेटा अपनी मर्जी से नहीं होती, लेकिन एक बात जरूर है, वो मैं हमेशा कहूँगा कि जिस यहाँ कमिटमेंट आप कमिटमेंट करें, आप पसंद करें या ना करें, करें ऑनेस्टली, और अगर नहीं गुजर होती तो फाइंड सम अदर प्लेस, लेकिन लड़ाई झगड़ा नहीं करें। ट्राई टू पे बैक व्हाट यू आर बीइंग पेड फॉर, और अगर समझते हैं कि एडजस्ट करते हैं तो कैरी ऑन, अगर समझते हैं कि नहीं एडजस्ट करते तो फाइंड सम वे आउट। गॉड इज, दुनिया बहुत वसी है, अगर कोशिश आदमी करता है तो जो चाहता है वो उसको मिल ही जाता है किसी ना किसी तरह। अब मैं आपको बताऊं कि मैं जो डिपार्टमेंट छोड़े हैं वो अपनी खुशी से नहीं छोड़े थे, लेकिन किसी के साथ मैंने जिक्र कभी नहीं किया। I had some certain grievances which I had no cure over there. So I kept on waiting for the opportunities, and therefore that is how I joined the Air Force. तो ये हर चीज अपनी मर्जी के मुताबिक बेटा दुनिया में नहीं मिलती। एटॉमिक एनर्जी को भी मैंने छोड़ा इसलिए कि वहाँ सवाए फाइलों में नोट लिखने के और कुछ काम नहीं था, वहाँ मैं उसमें एडजस्ट नहीं कर पाया। यूनिवर्सिटी में चला गया, आई वाज क्वाइट रिस्पेक्टेड, लेकिन वहाँ मेरे कोलीग्स लोग PhD नहीं थे, वो सारे मुझसे हसद करते थे, तो वो एनवायरनमेंट मुझे पसंद ना आई। एयरफोर्स ने यूटिलाइज कर दिया अमेरिकनों की वजह से। मैंने अप्लाई किया तो मैं सिलेक्ट हो गया, तो अमेरिकनों की वजह से मैं आ गया, वरना मैं कभी एयरफोर्स में ना आता। वो कहने जाता है कि अमेरिकनों को, नूर खान अमेरिकनों को बना दिया कि मुझे टेक्निकल करने चाहिए, फिर उनकी वो बात जो था वो उसको वो रद्द नहीं कर सकता था। तो उन्होंने कहा जी आपके जो बंदे एजुकेशन वाले हैं ये हमारे स्टैंडर्ड पे पूरे नहीं उतरते, हमने बाहर से भर्ती करने हैं लोग। तो उन्होंने कहा ठीक है, गो अहेड एंड डू इट। तो मुझे रोजी मेरी यहाँ ले आई, वरना मैंने एयरफोर्स में कहा आना था। हमारा तो कोई दूर का रिश्तेदार भी एयरफोर्स में नहीं था। वो तो अमेरिकनों को अल्लाह खुश रखे, वो आ गए, तो उन्होंने कहा जी हमें क्वालिफाइड आदमी चाहिए जो हमारा काम करे। तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया, मुझे हेड बना दिया। तो गॉड इज ग्रेट, वरना हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे भाई एयरफोर्स में आना। आपकी सर डेस्टिनी डेस्टिनी भी होती है जो ले जाती है। मैं तो अल्लाह की देन का पे जिंदा हुआ, आर्टियन वाले से अल्लाह की देन है मुझे। मेरी अपनी एफर्ट से मैं कभी एयरफोर्स में नहीं आ सकता था। वो अमेरिकन आ गए, वो मेरा दरवाजा खुल गया, मैं उसमें एंटर हो गया। अल्लाह
शुक्र है सर तुसी आ गए नहीं तो असली बिकॉज यू नो उसको अल्लाह की देन समझे, वरना मुझे इस सोच का भी ख्वाब में भी ख्याल नहीं आया था। पर मैं कहा करता था कि मैंने कराची जाना ही नहीं है, क्या मैं ऑटोमेटिकली छोड़ के गया हूँ, कि मैं कहता था कि मैं कराची कभी आऊंगा ही नहीं। और अल्लाह को पता नहीं क्या मंजूर था, उन्होंने कहा हाँ तू कराची से नहीं आएगा, सारी उम्र से मैं तुम्हारी यहीं गुजरेगी। लो जी, ये अपॉइंटमेंट हुई तो सारी उम्र कराची में गुजर गई। तो बात कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो आपकी मर्जी के मुताबिक तो कुदरत को जो मंजूर होता है ना, वो आपको कहीं से कहीं ले जाता है। वरना मेरा कभी इरादा कराची में आने का नहीं था, लेकिन एयरफोर्स ने मुझे प्रोफेसर बना दिया 40 साल की उम्र में। वो अट्रैक्शन मुझे यहाँ ले आई। मैं एसोसिएट प्रोफेसर था उस वक्त यूनिवर्सिटी में, इन्होंने प्रोफेसर का मुझे रैंक दे दिया। और मैं वहाँ पे हॉस्टल एनवायरमेंट थी, क्योंकि जो पीएचडी नहीं थे, वो चाहते थे ये मुसीबत हमने सीनियर कहाँ से आ गई। तो मुझे वो एनवायरमेंट अच्छी ना लगी तो मैं एयरफोर्स में आ गया। तो ये कुदरत का एक काम है, और कुदरत ने मुझसे बड़ा मुझे एहसान भी बहुत किया है और मुझे से काम भी बहुत लिया है। लेकिन रहे हैंड टू माउथ ही सारी उम्र है। लेकिन सर रिग्रेट्स नहीं होंगी ना? हैंड टू माउथ तो खैर रहता है इंसान, लेकिन रिस्पेक्ट जितनी मिली आपको माशाल्लाह। ये आपकी अपनी ये अपनी बाखुददारी है, वरना मैंने कभी किसी से एक्सपेक्ट नहीं किया कभी कुछ। ये आप लोगों की बाखुददारी है जो अभी तक याद करते हैं और यहाँ तक दिए हैं कि आज जो मुझे आपने स्पेशली मुझे बात पे लिए कहा है, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। सर सारे के दिल में आपके लिए इज्जत है, सब स्टूडेंट्स में। आपको और जो भी सवाल पूछना चाहे आप आपकी मर्जी से, आई कैन आंसर दैट, बट बाकी मैंने अपने मतलब आपको बहुत कुछ बता दिया। सर एक छोटा सा सवाल है आपसे, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है सर? आपके दादा की डेट ऑफ बर्थ क्या है? नहीं सर, ये बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए जानना। 1926। 19 और सर डे मिलेगा सर? डे मिल जाएगा? डे एंड मंथ? डेटा 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर, ठीक है। नोट कर लो सलाउद्दीन। बिल्कुल सर, नोटिंग 16/10/1926। माशाल्लाह माशाल्लाह। और सर तुसी तो यू लुक एज इफ यू नो अभी तो यू स्टिल लुक वेरी यंग। बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बट सर आपने कहा ना कि मेरे पास, सर आपने कहा मेरे पास क्योंकि मैंने बहुत उम्र गुजार दी है। अब नो ग्रीवेंस इज द मैसेज कम देन। सर आपकी दौलत हम हैं, आपने इतनी दौलत कमाई है। ये जो जितने बच्चे हैं, ये इतने यंगस्टर्स हैं, अब हम भी अब बुढ़ापे में चले गए हैं, बट ये जो यंगस्टर्स हैं माशाल्लाह दे हैव डन वंडरफुली वेल फॉर द कंट्री, अल्हम्दुलिल्लाह सर। और ये आप लोगों की, अल्लाह के बाद आप लोगों की देन है, आप जैसे उस्तादों की, आप जैसे टीचर्स की। अल्लाह ने मौका दिया तो हमने आपकी खिदमत की, आपने मुल्क की खिदमत की। आप माशाल्लाह आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, आपको बाहर भी जाने का मौका मिल गया। तो ये मेहनत जो है जाया नहीं जाती, बिल्कुल किसी न किसी रंग में आपके काम आ ही जाती है कभी न कभी। बिल्कुल सर बिल्कुल। आप देखना यू आर मेड ए प्लेस इन ए हाईली टेक्निकल एडवांस कंट्री। तो ये कोई मामूली अचीवमेंट नहीं है, ये आपकी बैकग्राउंड की मेहनत है जो आपको फल दे रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सर। अगर आपके पास कैपेबिलिटी ना होती, आप तो उसी तरह हाईली एडवांस कंट्री में एडजस्ट हो सकते थे कभी? नेवर। होते भी थे दो और पोजीशन में होते। दुरुस्त। जो आपकी वो मेहनत है अर्ली स्टेज की, जो आपने नेक नीयती से काम किया, तो उसकी आपको अल्लाह ने समझ दिया। आपने एयरफोर्स की सर्विस भी की, अब माशाल्लाह बाहर के मुल्कों में अपने अच्छी पोजीशन में हैं, खाते पीते हैं, खुश रहते हैं, फैमिली माशाल्लाह ठीक ठाक है। तो ये भी अल्लाह की देन है, लेकिन पीछे इसके मेहनत है।
वो किस रंग में आपको रिजल्ट मिलता है ये आप इसका फैसला नहीं कर सकते। वो अल्लाह की देन है, मौका मिलता है, बात कर नहीं मिलता। अब मैं एक और बात आपसे कहने लगाऊंगा, हमारे साथ जो हमारे कुलीग थे हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट थे, उनके ग्रेड भी हमसे अच्छे थे, उनको बाहर जाने का मौका ही नहीं मिला। चीज आपने कहा, और उनमें से बात जो ना यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट थे। तो मैं तो अल्लाह का शुक्र इतना है कि कोई अल्लाह की देन के तरीके कोई यू कांट डिटरमिन, लगे रहो लगे रहो लगे रहो, कहीं ना कहीं दरवाजा खुल जाता है। सर आपने शुरू की पढ़ाई कहाँ पे की? सियालकोट मरे कॉलेज, और अच्छा। उसके बाद छोटा सा गांव है, उसमें 5वीं जमात का स्कूल था जहाँ से शुरू किया था हमने। अच्छा सर, सियालकोट में? सियालकोट से मरे कॉलेज से मैंने बीएससी किया, फिर इंजीनियर, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से एमएससी मैथ्स किया। तो मैं ऑनर में फर्स्ट आ गया, तो मुझे वजीफा मिल गया, तो उसे हमारा एमएससी जो है ना उसमें तकलीफ कम हो गई। तो हम तो भाई अल्लाह की देन पे, मेरी तो सारी जिंदगी है ही अल्लाह की देन पे। वरना हमें जब मैं 4 साल की उम्र का था जब मेरे वालिद साहब फौत हो गए। He left nothing। तो हमारे नाना ने हमें अपने साय में ले लिया, तो उसने हमें वो दाखिल करा दिया। छोटा सा स्कूल था, तक कोई 3 किलोमीटर के ऊपर, 5वीं जमात तक था वो। तो आज मैं उनको याद करता हूँ कि देखिए उन्होंने जो छोटा सा पौधा यतीम का पौधा लगाया था, वो आज तक बड़ा गर्स हो के इतना बड़ा इतनी बड़ी पोजीशन में चला गया। अल्लाह उसको जज़ा दे। ये उनकी वरना उनकी अपनी औलाद अब तक मैट्रिक तक पढ़ी है। उसी माहौल में मैं पढ़ता 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 वहां तक पहुंच गया। लेकिन उनकी अपनी औलाद जो है वो आप भी बड़ी मुश्किल से मैट्रिक पास हुए हैं, वो खेती बाड़ी में लगे रहते हैं। तो कुछ चीजें अल्लाह की देन होती है जिस पे आदमी की अपनी हिम्मत कम होती है, अल्लाह की देन ज्यादा होती है। मुझ पे अल्लाह की देन बहुत ज्यादा है। मैं हर वक्त शुक्रिया अदा करता हूँ। कहाँ एक मामूली सा यतीम इंसान, और कहाँ ये मेरी जेब में कभी पैसा नहीं होता था। लोग इंटरवल में खाना पीना किया करते थे, हमारी जेब में कभी पैसा नहीं होता। लेकिन उस वक्त अल्लाह ने हिम्मत दी, कभी सोचा ही नहीं। सोच पड़ जाते थे आप यहाँ तक कभी ना पहुंचते। वो भी अल्लाह की देन है। कभी सोचा ही नहीं कि तेरे पास है क्या, सोचा ही नहीं। काम पढ़ते रहे, जो काम मिला करते रहे, पढ़ते रहे, करते रहे। अल्लाह ने मौका देते रहा, एक स्टेप आगे चलते गए चलते गए चलते गए, मौका मिलता गया। तो हर स्टेप पे मेरी अपनी मेहनत से मैं ऊपर नहीं गया। मुझे नीयत मेरी थी, होती थी, हिम्मत मुझ में नहीं थी। हर स्टेप में अल्लाह ने मेरी मदद की, तो मैं हमेशा एक स्टेप आगे चला गया। मेरी तालीम की हद 5वीं जमात थी, फिर 10वीं जमात हुई, फिर 14वीं जमात हुई, फिर यूनिवर्सिटी हुई, फिर बाहर का स्कॉलरशिप हुआ, फिर पीएचडी हुई, फिर एयरफोर्स में सर्विस आ गई, और फिर मतलब मैं तो मतलब मैं अपनी अल्लाह की देन पे जिंदा हूँ। और मेरी कौन सी चीज अल्लाह को पसंद आ गई कि जिसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। मैं कभी अपनी जिस हालात में मेरी लाइफ शुरू हुई थी, मैं कहीं मजदूर होता थोड़ा सा, कहीं या कुली होता या मजदूर होता। अगर मैं उस हालात को देखता हूँ जिसमें मैं अपना करियर शुरू किया, ये अल्लाह की देन है कि मुझे इतना कुछ दिया कि जिसका मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। बाकी मसले तो दुनिया में ना आराम और तकलीफ से पार्ट ऑफ लाइफ है। आपकी सर फितरत भी, नेक फितरत भी आप ने हेल्प की आपकी, बिकॉज आपकी कुदरत की हेल्प के बगैर तो फितरत, ये भी कुदरत की हेल्प के बगैर आपका कोई चीज कामयाब नहीं होती। हमने ऐसे ऐसे नेक लोग भी देखे हैं जिन बेचारों को सारी रोटी कपड़े के आजादी रहे बेचारे।
हालांकि सर उनकी आपके नेकी का कोई मतलब मुकाबला नहीं था। बड़े सर आपके हेलो, आपके एक दोस्त है अल्ताफ साहब, हाँ जी, उनका बेटा भी आपका शागिर्द था। ओ हाँ वो था, उसको एक बार बीमार हुआ तो मैं उसके गाँव गया था। हाँ। हाँ, उसका मैंने बेटा कितना जाफी, क्या नाम था उसका? उसका तनवीर नाम था सर। हाँ तनवीर, तनवीर। वो जब पास आउट हुआ तो उसके वाल साहब आए थे मेरे घर, हाँ। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि वो हमारे बहुत ही नेक कुलीग हुआ करते थे। बीए तक हमारे साथ, बीएससी तक उसने पढ़ा। उसके बाद तो उन्होंने और करियर अडॉप्ट किया, हमने और करियर अडॉप्ट किया। एक बार ना वो बीमार थे, मुझे पता चला, कि मैं उनका पता देने उनके गांव गया पैदल, और नहीं आगा तक तो मैं गया बस पे। उसके बाद मैं पूछता पाछता कच्चे रास्ते उनके गांव पहुंच गया। तो उन्होंने मेरी बड़ी खिदमत की, अल्लाह ने, और अल्लाह ने जन्नत की पता वो दिया आज कब। भी आपका बड़ा जिक्र करते हैं। अभी हैं जिंदा के? नहीं, वो तो इंतकाल करके उनका बेटा हमारे साथ हाँ है। बेटा, तो वो हमारे बहुत ही नेक कुलीग हुआ करते थे। बीएससी तक हमारे साथ पढ़े थे। उसके बाद उनका और प्रोफेशन हो गया। हमारे पास तो पैसे नहीं थे भाई इंजीनियरिंग करने के। हमें तो जहाँ मौका मिला हम घुस गए। हमें वो स्कॉलरशिप मिल गया, हम यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गए। हमारा तो हाल ये था। तो वो माशाल्लाह बड़े नेक इंसान थे, बस दिल के बड़े अच्छे। और कोई आपने सवाल पूछ रहे हैं तो बेटा पूछ सकते हैं। पीएचडी सर आपको एटॉमिक एनर्जी कमीशन की तरफ से मिली? हाँ बिल्कुल, मैं रिएक्टर मैथमेटिक्स में स्पेशलाइज किया था। अच्छा सर, अच्छा। था मैथमेटिकल, लेकिन वो रिएक्टर की कैलकुलेशन थी जिसमें एनर्जी पैदा होती है। सर अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अजफर समीन है। मैं एम फ्रॉम G30। हम लास्ट कोर्स थे जो कि कोरंगी में हमने एक टर्म गुजारी थी, और उसके बाद फिर CAE जो है वो फिर शिफ्ट कर गया था रिसालपुर। आई जस्ट वांटेड हाँ टू नरेट एन इंसिडेंट विद यू कि हम लोग वो हॉल में बैठे हुए थे, छोटे बच्चे, और एकदम आप आ गए, यू आर द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और बात शुरू हो गई। और कुछ लड़कों ने कहा कि सर हम लोगों को जो है वो मैथ समझ में नहीं आती, इंटीग्रेशन बड़ी मुश्किल है। सो यू नो सर, ओ उसमें क्या मुश्किल है, कोई मसला ही नहीं है, इंटीग्रल जो है वो ऐसे होता है। एंड देन यू मेड अ पोज ऑफ किलोपेट्रा, आई स्टिल रिमेम्बर दैट। And then throughout the lecture, you were moving from one place to another. So much energy, mashallah, at that time. It was such an enjoyable lecture. I still remember. So I just wanted to share that with you and with the rest of your students over here. That mashallah, yeah. Even मुझे अभी तक याद है कि जो आपने ओकेलोपेट्रा का पोज बनाया था इंटीग्रल समझाने के लिए हमें। तो मेरा आपकी सवाल, बरकतदारी है, देखो ना, अल्लाह आपको भी जज़ाद है। आपने तो अपनी ड्यूटी जहाँ मुमकिन हो सका पूरी की, किसी पे एहसान नहीं किया, और किसी से को मतलब कोई कोई चीज मांगी भी नहीं। ये भी है अल्लाह की देन। कुछ माशाल्लाह। गुजारा होता रहा है। हम तो समझते थे कि भाई जो 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 कमिट किया है वो नेक नीति से करो। अगर नेक नीति से नहीं करना तो फाइंड सम अदर प्लेस। तो मेरा बिल्कुल रसूल जिंदगी का यही रहा हमेशा। जी सर, मेरा हमने सवाल आपसे ये, सॉरी किसी सॉरी स्टूडेंट पे सर, एहसान नहीं किया। अगर उसने मेहनत कर दी है तो अल्लाह उसको जजा दे। अगर ना वो उसकी मेहनत है, हमने तो अपनी ड्यूटी पूरी की जितनी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सकती थी। हमने किसी का एहसान नहीं किया। ये तो आपकी बरखुरदारी है कि जो इतनी इज्जत सजाई मुझे दी है, मैं इसका आपको सिला नहीं दे सकता। नहीं नहीं सर सर, ये सवाल आपकी मेरा वजह से ये, हम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। असफर प्लीज गो अहेड। सॉरी सॉरी सर, सर सवाल मेरा ये था आपसे कि आपने PhD की भी थी माशाल्लाह, यू डिडंट थिंक के बाहर जाते थोड़ा और वहाँ पे जाके टाइम गुजारते, थोड़ा और रिसर्च करते, थोड़े पैसे वैसे बना लेते? वो हमने सोचा ही नहीं था कभी। तो हमें मैं नहीं, वहां मैंने कभी सोचा ही नहीं था।
हमने कहा भी अल्लाह ने हमें मौका दिया है कि पाकिस्तान ने हमें, लेकिन ये ख्याल कभी आया ही नहीं कि ये मुल्क के हालात इस तरह बिगड़ जाएंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। उस वक्त हालात मुल्क के इतने अच्छे थे कि हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हमने हमें ये दिन देखने पड़े थे जो आप देख रहे हैं। सर ये कौन सा साल था जब पीएचडी कर रहे थे आप, कौन सी ईयर्स में? मैं देख रही ये था 62। उस वक्त अभी नया नया कंप्यूटर निकला था। सर ये बताएं, अभी तक वो मैथमेटिशियन तो आप टॉप के मैथमेटिशियन हैं, बट अभी तक उंगलियों पे जरूर गिनते होंगे हमारी तरह। क्या बताया मुझे, वो आदत नहीं जाती। आई स्टिल रिमेम्बर यू, कभी कभी आप कुछ अच्छा उंगलियों पे गिन रहे होते थे एट दैट टाइम ऑल्सो। बहुत ये शुक्रिया 50 साल बेटा। पहले की बात है सर, 50 साल पहले की बात है ये। एंड माशाल्लाह उस जमाने में वी हैड दो स्लाइड रूल्स एंड ऑल, तो हाँ आप ही स्लाइड हैं। रूल बिल्कुल सही है। अब तो किसी स्लाइड बच्चे को रूल बताओ, और बच्चे को बताओ कहता है ये क्या चीज थी। सो बट आप लोगों ने वो उस जमाने में सीखा। सर एक चीज आपको मैं बता दूं, आपका बहुत जो खजाने की आप बात करते हैं ना, हम जितने भी हैं ग्रेजुएट्स फ्रॉम दैट कॉलेज, अभी ये बच्चे यंग मैन हु सेड लास्ट कोर्स आपके साथ किया है, दे ऑल ओवर द वर्ल्ड, और आपका नाम हर घर में लिया जाता है सर। अल्लाह का तो लिया जाता है बेशक, बट आपका बेशक। नाम जरूर लिया जाता है। और आई टेल यू, आप कहीं भी जाएंगे, आई एम श्योर, अब नॉर्थ पोल की मैं बात नहीं कर रहा, बट वेर एवर यू विल गो यू विल फाइंड आपको कॉल करने की जरूरत है। फिर आप देखिए आपको व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट यू विल गेट, बिकॉज वी आर वेरी मच इंडेटेड टू यू एंड पीपल लाइक बहुत यू। शुक्रिया। और भी जो हमारे बेशक। उस्ताद थे, और अल्लाह ताला आपको सेहत जिंदगी दे सर। और आमीन। रियली आपको देख के यू नो इतना बंदा नॉस्टैल्जिक हो जाता है कि उसी तरह है सर माशाल्लाह। आप सिर्फ उस जमाने में नहीं, उस जमाने में भी आप काफी एनर्जेटिक थे, अभी तक एनर्जेटिक हैं आप माशाल्लाह। और फेस वैल्यू रह गई है, अंदर से खोखा हो गया है। सर जैसे आप बोल रहे हैं सर, खोखे नहीं आप हुए, आप स्टिल यू नो एज, आपकी तो मेमोरी, हम तो बहुत कुछ भूल चुके हैं, आपकी तो माशाल्लाह इतनी अच्छी मेमोरी है। आप अगर मैं पूछूं कि आपने पहली शरारत कब की थी, वो भी शायद आप बता देंगे। तो ये अल्लाह की देन है। कमर से ऊपर वाला अच्छा बिल्कुल ठीक है, कमर से नीचे वाला अच्छा जवाब देंगे वो हम सबका दे गया सर, हमारी उम्र में लोअर हाफ इज नॉट वर्केबल, पर आपका तो माशाल्लाह मेमोरी दिमाग मेरा बिल्कुल ठीक है आपकी, लेकिन नीचे से छुट्टी हो गई है, आवाज भी माशाल्लाह बड़ी सही है। तो मेरी उम्र में लोग तो बोल नहीं आपका सकते। सेंस ऑफ ह्यूमर भी नहीं खत्म हुआ सर, बड़ा जबरदस्त आपका सेंस ऑफ ह्यूमर है माशाल्लाह। मेरी उम्र के लोग तो बोल नहीं सकते, लेकिन अल्लाह ने मुझे अच्छे दिया नेमत कि अभी मेरी आवाज से कोई पहचान नहीं सकता कि मेरी उम्र तकरीबन 100 ईयर्स के करीब है। माशाल्लाह 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 सर। सर जो बात आप कर रहे हैं ना सर, ये मातीर मोहम्मद ने भी, उन्होंने भी यही शिकायत की थी। चलो अल्लाह को जज़ा दे। सर साइंस ने अब काफी तरक्की कर ली है इस मामले में भी। अच्छा सर, आप जो आपके दिल की बात आप पूछ ले मुझसे, हमारा भी अब आखिरी वक्त है, अब आप पता नहीं कब तक जिंदा रहे अल्लाह ना ना रहे। करे सर, अल्लाह ना ताला करे। दे सर आपको। आप अपनी फैमिली के बारे में बताएंगे सर, कितने बच्चे हैं कितने, क्या क्या कर रहे हैं? बस देखिए, मैं उसका एक ही जवाब देता था कि चिराग तले अंधेरा। नहीं सर, हम सब आपके बच्चे हैं सर, हम सब आपके बच्चे मैं भी हैं। बताने लगा हूँ तारीफ सबकी। ये दुनिया की अजीब चीज है कि मैंने इतना पढ़ाया है लोगों को। नेवी के अफसर हमारे शागिर्द रहे, आर्मी के शागिर्द रहे, रेलवे के शागिर्द रहे, वापडा के शागिर्द रहे, एयरफोर्स के शागिर्द रहे, नेवी के रहे, सिविल के रहे, फॉरेनर्स भी हैं सर, फॉरेनर्स भी। लेकिन अपने घर में, अब मैं अपने घर की हालत बताने लगा हूँ, चिराग तले अंधेरा। तो
मेरी 4 बेटियां थी और एक मेरा बेटा था, वो पढ़ा ही नहीं। चारों बेटियां पढ़ के अपने अपने घरों में ठीक हैं माशाल्लाह। लेकिन जिस सब ने मेरी घर को कायम रखना था वो पढ़ा ही नहीं। उसका बेटा है, वो भी पढ़ने लिखने में इसी तरह ही है। हालांकि उनके दिमाग बड़े शार्प हैं। अब अल्लाह ही जाने वो क्यों नहीं उन्हें जोर लगाया। मैं तो सारी उम्र जोर ही लगाता रहा, उनको जोर लगाने की कोई शौक ही नहीं है। इसलिए जहाँ प्लस है वहाँ माइनस भी है मेरे बेटे। नहीं सर, हम सब आपके शागिर्द हैं एंड वी आर डूइंग वेल माशाल्लाह। जिस तरह से शायद वही ने तो कहा, मैं कहता हूँ, एवरीवेयर वी आर जहाँ देयर। इतना बड़ा प्लस अल्लाह ने मुझे दिया है वहाँ इतना बड़ा माइनस भी दिया है। यू नेवर नो सर, कल का पता नहीं है। वो जिसके बेटे के बारे में या उसके बेटे के बारे में हम बात कर रहे हैं, आप जैसे नेक आदमी को जिसने इतना लोगों को तालीमी तौर पे अदरवाइज इतना फ़ायदा पहुंचाया, अल्लाह ताला आपको इसका अजर ज़रूर देगा इंशाअल्लाह। ये हमारी दुआ है। वो तो अजर तो मुझे मिल रहा है। मैं से कहता हूँ कि कुदरत के देखे काम कि सारी दुनिया को हमने पढ़ा दिया, कोई डिपार्टमेंट नहीं जैसे मेरे शागिर्द नहीं गए। अपने घर में देखे, बेटियां भी उसी घर में पैदा हुई, बच्चे भी उसी घर में पैदा हुए। बेटियां सारी पढ़ गई हैं, 2 डॉक्टर हैं, एक इंजीनियर है, एक प्रोफेसर है, वो अपने घरों में खुश हैं। लेकिन जो बेटे हैं वो नहीं पढ़े। तो सर आजकल बेटियां भी बेटों की तरह ही हैं माशाल्लाह। तो ये मत कहें कि आपकी औलाद पढ़ी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अल्लाह की बड़ी देन है सर, बरकत है सर, बेटियां बरकत होती लेकिन है। लेकिन अपने मुल्क की जो रवायत है वो ये है कि अपने घर को जिंदा रखते हैं बेटे। जी सर। अनफॉर्चुनेटली आई एम वेरी लकी ऑन दैट। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जहाँ इतना बड़ा प्लस होता है ना, उसके पीछे कहीं ना कहीं छोटा सा माइनस भी होता है तो दूसरों को नजर नहीं आता। ये आपने अपना मैथ्स लगा दी ना सर। नहीं नहीं, मतलब ये है कि दूसरों को नहीं पता होता। दुनिया तो सारी शक्ल देखती है ना जी। कोई घर होगा जिसमें सारे प्लस होंगे सारी दुनिया में। जी बिल्कुल, प्लस भी होगा साथ माइनस भी होगा। माइनस भी होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल दुरुस्त है, दुरुस्त है। वो तो अल्लाह की देन है कि कहीं प्लस ज्यादा है माइनस कम है, कहीं माइनस ज्यादा प्लस कम है। दुनिया में कोई घर दुनिया में ऐसा नहीं है जिसमें सारा ही प्लस हो। सही कह रहे हैं। अल्लाह मियाँ प्लस भी देता है, कुछ माइनस भी देता है, कुछ गम भी देता है, खुशियां भी देता है। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त, एब्सोल्युटली सर। तो इसलिए ना ये गारंटी 100% जो ना किसी घर में नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। टाइम में फर्क है, तकलीफ किस तरह की होगी, कैसे होगी, खुशहाली कैसे होगी, उसकी स्टाइल में फर्क हो सकता है। लेकिन रियलिटी में ये दोनों चीजें साथ साथ ही चलती हैं। ये अल्लाह के टेस्ट अल्लाह की देन है कि किसी को अल्लाह खुशियां का ज्यादा देता है, गम कम देता है, किसी को गम ज्यादा देता है, खुशियां कम देता है। कोई घर दुनिया में इससे खाली नहीं है। इसलिए अगर आपको अल्लाह ने बाज़ तरीके से गुजर बसर हो रही है, अल्लाह का शुक्र करें। सबसे बड़ी चीज दुनिया में जो मैं समझता हूँ बुरी चीज जो है वो है मोहताजी। जी हाँ सर। अल्लाह किसी का मोहताज ना करे, दाल रोटी पैसा खुशी का अपने घर में खा ले। अगर किसी के मोहताज नहीं है तो ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि जब आदमी किसी का मोहताज होता है तो जमीर बिक जाता है, फिर आप वहां मुंह से सही बात नहीं कर सकते। सर हमारे बुजुर्ग कहते थे ना जुड़े ना थोड़े। सो वो जो आप अपनी बात कर रहे हैं ना, आप भी वो ना जुड़े ना थोड़े। जुड़ गया तो दिमाग खराब हो गया, थोड़ गया तो हाथ फैलाने पड़ गए, मोहताजी शुरू हो गई। सो आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए जो कुछ भी है हमारे पास। और आप जैसे उस्ताद हैं एंड जिन पे हमें बहुत फख्र है सर, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू ऑनेस्टली। ये
जब ये सलाहुद्दीन, थैंक यू वन ऑफ आवर यंगस्टर्स, इसने जब बताया तो यू नो वी हैड मेरी को कमिटमेंट थी, मैं कहा नो वे, आज मैंने डेफिनेटली अमीन साहब से बात जरूर करनी है। और सच्ची बात है सर, दिल को बहुत खुशी हुई है आपको देखकर, आपकी बातें सुनकर, एंड वो पुरानी यादें। अब मेरा कोर्स में सलीम रहमान है, अब मुझे इवन सलीम रहमान की बातें याद आ रही हैं कई। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो जिंदगी में एक चीज का मैं समझता हूँ को अल्लाह की बड़ी देन है कि आपको अल्लाह मुताजी से बचाए किसी के, बस। आमीन आमीन आमीन। क्योंकि मुताजी जब आ जाते हैं तो आदमी का ज़मीर बिक जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और नंबर 2, मैं आपको यही कहूँगा कि कमिटमेंट करें किसी के साथ तो उसको अपनी जितनी हिम्मत है उसको पूरा करें। अगर आपका जी ना चाहे तो फिर चुपके से उसको छोड़ के चले जाए। बिल्कुल सही। चक्कर ना दें। ये खूबी वेस्टर्न मुल्कों में जो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है ना, उनकी तरक्की का राज ही वही है। बिल्कुल। कि अगर उन्हें करना है तो कहेंगे हाँ, नहीं करना तो अब सारी कह देंगे। हमारे यहाँ ये है कि फायदा कितना होगा, हाँ में फायदा या ना में फायदा है, इसीलिए हमें बर्बाद करके रख दिया। हमारी मुल्क की बर्बादी का सबसे बड़ी वजह यही है कि हम अपना फायदा देखते हैं, जमीन बेच देते हैं। हालांकि काबिलियत अल्लाह ने हमें बहुत दी है, दिमाग भी दिया है, सेहत भी दिया है, मुल्क भी दिया है, जराए भी दिए हैं, लेकिन ये एक एलिमेंट जो हमारी जो है ना कि हम अपना फायदा देखते हैं हमेशा। किसी का नुकसान होता हो, कोई मरता है, जीतता है, रहता है, लार्ज मेजॉरिटी जो है वो इस अमल पे चल रही है, लिहाजा मुल्क जो है वो नीचे जा रहा है। और ये हमारी बदअमाली है। अल्लाह की देन बहुत है, हमें इस्तेमाल करना नहीं आता। हम एक दूसरे को बुरा भला कह के खुश होते हैं, कभी मानते ही नहीं है। वेस्ट के लोगों में सबसे बड़ी चीज जो है कि गलती करते हैं तो मान जाते हैं और सारी कह देंगे, माफ कर देते हैं। ये इनकी इतनी बड़ी अच्छी आदत है कि मैं 4 साल इंग्लैंड में रहा हूँ, किसी को सड़क के ऊपर झगड़ते नहीं देखा। उनके यहाँ भी मसले हैं, लेकिन उनकी जो दुनियादारी की डीलिंग है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है। हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, और यही हमारी बर्बादी का बायस है। सर इंशाल्लाह आपके शागिर्द करेंगे। अब ये जो यंगस्टर्स हैं, हमने एक बकायदा एक सोसाइटी बनाई है सारे एरोनॉटिकल इंजीनियर्स की। हमें आपकी सरपरस्ती चाहिए, आप जैसे लोगों की, एंड यू विल सी कोशिश पूरी करेंगे। हम तो खैर इतना नहीं, बस यंगस्टर्स, ताकि इस मुल्क को जितना जो कैरेक्टर बिल्डिंग है और ये चीज़ें जिसका आप जिक्र फरमा रहे हैं, इंशाअल्लाह करीम सर विल ऑल स्ट्राइव फॉर इट। आपकी दुआएं चाहिए और आपकी गाइडेंस चाहिए। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि हमारे तौर तरीके ठीक हो जाए, ये मुल्क बड़ी जल्दी तरक्की कर सकता है। अल्लाह की देन बहुत है, यहाँ दिमाग बहुत अच्छे हैं, सेहत भी है, जराए भी हैं। अगर आप उनको सही तरीके से इस्तेमाल न करें तो फिर अल्लाह मियां क्या करे वहाँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप देखना, अल्लामा इकबाल का एक शेर है, वो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं वो आपको वो सुना देता हूँ कि ये खाकी अपनी, मैंने याद कर दूं थोड़ा सा। हाँ, ये खाकी अपनी फितर में न नूरी है न नारी है। ये खाकी आकी फितर में या ना ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये नहीं है। मैं सोच लूँ, मुझे पूरा शेर मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं हाँ, बता दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे, के दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, गुले गुलजार होता है, गुले गुलजार, गुले गुलजार होता है, मिलकर आगे क्या है यार, गुले गुलजार होता है। हाँ, खाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है।
जी बिल्कुल। और वेस्ट ने इसको अपनाया है, हमने नहीं अपनाया। बता दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है, उसको हमने खैर बाद इस मुल्क में कह दिया। हम जो आदमी मेहनत करता है उसको मेहनत नहीं करने देते, उसको कहते हैं ये तो पागल है। नहीं अभी सर हालात थोड़े से चेंज हो रहे हैं इंशाल्लाह। नहीं मतलब करने की ये बीमारी हमें है बिल्कुल है, इलाज करना जरूरी है अगर हमें तरक्की करनी है। सही है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अगर इसी को इंशाल्लाह सर करेंगे, अगर इंशाल्लाह इसी को बनाए रखेंगे, हम तरक्की को भूल जाएं। अल्लाह में, हाँ अल्लाह के यहाँ भी लिखे, एक कुरान की आयत है, ये कुरान की आयत है, क्या मिलेगा वही जिसके लिए मेहनत करोगे। अच्छा एक आयत और है, वो भी मैं बता दूं आपको कि उसका मैं याद करना चाहता हूँ। नहीं जो उसका तर्जुमा मैं आपको बता दूंगा, मैं याद कर लूँ। ये भी अमीन साहब की पुरानी आदत है, सिर पे हाथ रख देते थे, याद है सलीम? बिल्कुल सर, ऐसे बिल्कुल। अच्छा वो मैं थोड़ी सी मुझे याद आ रही है, गलती हुई तो भाई मुझे ठीक कर देना। तो ये है, अल्लाह को सबसे वो चीज जिससे सबसे ज्यादा नफरत है वो ये है कि जो कहते हैं वो करते नहीं। जी या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। हाँ वो या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। हाँ ये वो कहो ना जो हमारी कौम पे ऐसी लागू होती है कि बस आदमी का सर शर्म से झुका जाता है कि दुनिया में सबसे जो मुतनफर चीज है अल्लाह के लिए वो ये है कि जो आप कहते हैं वो करते नहीं। जी जी। और इस मामले में मुसलमान सबसे लोएस्ट लेवल पे है, और जिनको आप काफिर कहते हैं वो इसके ज्यादा करीब हैं। उनके लेन देन में ऑनेस्टी ज्यादा है, उनके कौल में ऑनेस्टी ज्यादा है, उनके लेन देन में आपस में मेल जोल में ऑनेस्टी ज्यादा है। हमारी प्रैक्टिकल ऑनेस्टी जो है किसी के मुताबिक आप कुछ भी नहीं कह सकते। What is sad and what unfortunate। जी ये करेक्टर बिल्डिंग की जरूरत है सर, ये मेरे ख्याल में सिलेबस में भी आना चाहिए। हाँ अब रहा ये कि उन्होंने बनाई कैसे, प्राइमरी स्कूल से। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये पढ़ाना शुरू करते हैं वो कोई टीका नहीं है। वो प्राइमरी स्कूल में बच्चे को अच्छा इंसान बनाते हैं, इल्म कम देते हैं, इल्म सिर्फ उसको थोड़ा सा लिखना पढ़ना और तक आगे चल सके, रीडिंग राइटिंग अरिथमेटिक जितनी वो समझ जाए उतना ही काफी है ताकि आगे चल सके। लेकिन उसको अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं, उसकी अच्छी आदतों इतवार ठीक कि साफ सुथरा रहे, लोगों से मिलके रहे, वो खेल कूद में लड़ाई झगड़ा हो तो सुबह सफाई कर ले। उनको अच्छे आदात जो है प्राइमरी स्कूल में उनको इम्पार्ट किए जाते हैं, तालीम उनको आलम फाजल नहीं बनाया जाता। ये कोर्स में आना चाहिए, बुनियाद रख दी जाती है, लेकिन उनके इंसानी आदातों जवार जो हैं उन पे वो मैक्सिमम एम्फेसिस देते हैं। नंबर 1। नंबर 2 रगड़ा नहीं लगाते, वो कहते हैं बच्चा एक लाइन पढ़ता है तो वो उस्ताद के 2 सफ़े डिक्टेट करने से बेहतर है कि वो अपने पाँव पे खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। उसकी हेल्प करो, उसको एडवाइस करो, उसको गाइड करो, लेकिन उसका काम करके नहीं दो तो उसके बच्चे पे क्या है, वो उनसे गया गुजरा भी है वो भी अपने पाँव में खड़ा हो जाता है, वो कॉन्फिडेंट हो जाता है, वो कुछ ना कुछ दुनिया में कर लेता है। हमारे क्या है
कि गधे की तरह आप लाद के बेचते हैं प्राइमरी में बच्चों को, वो गधे ही हो जाते हैं। और जो मैडम ने डिक्टेट किया है अगर वो ना लिखे तो फेल। व्हाट ए डिफरेंस। तो हमें अपने बेसिक तो ठीक करना पड़ेगा। जब आप बेसिक से ठीक नहीं है तो आगे फिर क्या होगा। इसलिए उनके बच्चे वो प्राइमरी में वो उसको वो आजकल तो जमाना ये है कि प्राइमरी स्टेज पे वो बच्चों को घर में होमवर्क तक नहीं देते। एक आप कह यहीं पढ़ के स्कूल में छोड़ जाओ, इसलिए बच्चे दौड़ते भागते खुश होकर स्कूल जाते हैं। खेल कूद पे ज्यादा है, हाइजीन पे ज्यादा है, पढ़ाई पे इतना है कि आगे बढ़े तो न्यूक्लियर। तो उसका नतीजा ये है कि जो आगे बढ़ता है वो खुद सोच समझ के काम करता है, वो उसमें वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, वो किसी की मन्नत समाज करने की उसको जरूरत नहीं रहती। हमारे यहाँ डिक्टेशन है, हमारा दिमाग जो है वो बंद कर प्राइमरी में बंद कर देते हैं। तो कोई खुशी से खुश किस्मत जो है वो उनके उस जाल से बच जाता है तो आगे बढ़ जाता है, वरना हम अपनी कौम के दुश्मन आप हैं और हमें एहसास नहीं है। अब तो आप बाहर रहते हैं, आप देखें बच्चे कितने खुशियों के स्कूल जाते हैं। क्यों जाते हैं? वो ट्रीटमेंट अच्छा होता है, मोहब्बत प्यार का माहौल है, बच्चों को फ्रीली अपनी मर्जी से काम करने की इजाजत है, उनकी बैकग्राउंड बना देते हैं कि आगे बढ़ने के लिए रीडिंग राइटिंग अरिथमेटिक कम हो, आगे बढ़ सके, रगड़े नहीं लगवाते। और बच्चा जितनी मर्जी से पढ़ना चाहता है उसकी एडवाइस करते हैं, गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं, लेकिन डिक्टेट नहीं करते। तो बच्चा फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने पाँव में खड़ा हो जाता है और खुशी से स्कूल जाता है। और जब आदमी अपने पाँव में खड़ा हो फिर उसको दूसरों की मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको बेईमानी करने की जरूरत नहीं पड़ती। काम करने का मुआवजा मिल जाएगा, गुजर हो जाएगी, अल्लाह खासा। तो उन्होंने कौमों को बनाया है फाउंडेशन से। ये हमारे ऊपर से पेंट करने से कुछ नहीं होगा जब तक हम बेसिक बीमारियां जो हैं उनका इलाज नहीं करेंगे। ये मेरी व्यूज हैं, आप एग्री करें ना करें वो ठीक है। This is how I feel about my country. जी सर, ये प्राइमरी these are gems of wisdom. These are gems of wisdom, sir. This should be recorded and kept with us. We will. यहाँ प्राइमरी में गधे की तरह लोड करके we totally agree. तो इस तरह तक कभी नहीं होगी। Totally. क्यों? तो जिस प्रोसेस से हम उसको गुजारते हैं वो ही बनेगा ना। तो वो कौमों ने अपने कौमों को बनाने के तरीके जो इख्तियार किए हैं उस वजह से उनमें वो काबिलियत आ जाती है। हमसे मुख्तलिफ इंसान पैदा नहीं होते वहां भी, हमारे दिमाग शायद उनसे ज्यादा शार्प हैं, लेकिन हमारे इस्तेमाल का तरीका जो है वो डिस्ट्रक्टिव है, कंस्ट्रक्टिव नहीं है आजकल के जमाने के मुताबिक। सर यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि CAE में पहली दफा जो अभी आप बात कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, अमेरिकन्स ने किया, वरना पहले तो सारा रट्टा होता था। एंड पहली दफा हमने देखा ओपन बुक टेस्ट। हाँ, मैं सारी उम्र ओपन बुक, बिल्कुल ठीक है ना सर। तो ये ताकि ना लगाना पड़े, रट्टा ना लगाना पड़े। एग्जैक्टली। तो ये चीज लगाना पड़े, नकल ना मारनी पड़े। बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली। तो ये और क्रिएटिवनेस हमारे अंदर आप लोगों ने डाली थ्रू दिस मेथड ऑफ एजुकेशन। सोच समझ के कदम उठाने की आदत जो है ना,
ये वेस्टर्न एजुकेशन इसको डेवलप करती है। और अमेरिकन से हमने ये सीखा भाई, ये पहले हम भी उसी सिस्टम में पड़े हुए थे। अमेरिकन में ये ओपन बुक से ये है कि कॉपी खत्म हो गई, बच्चे को रगड़ा लगाने की जरूरत नहीं है, सोच समझ के पढ़ने की जरूरत है। अगर वो समझ गया है, भूल गया है, तो कंसल्ट कर ले, रगड़ा लगाने की क्या जरूरत है। जितना काम करेगा उतनी क्वालिटी उसकी बेहतर होती जाएगी। तो वो काम करने पे जोर ज्यादा देते हैं, रगड़े पे मन। उन्होंने तो अपने मुल्कों में मना कर दिया है कि आपने डिक्टेट नहीं करना। बच्चा थोड़ा पढ़ता है, ज्यादा पढ़ता है, उनको पढ़ने दो, उसको गाइड करो, उसको हेल्प करो, लेकिन उसको रगड़ा नहीं दिखाना आपने। तो प्राइमरी में कोई बात जगह तो उन्होंने ध्यान ही खत्म कर दी है कि बच्चा वहीं पढ़े, वहीं किताबें छोड़ के चले जाए, जाके खेले कूदे, जान बनाए। फिजिकली he should be a very physically and socially he should be a good person, and physically he should be strong enough to go face the world. ये दो चीजें वो प्राइमरी में एम्फसाइज करते हैं, और थोड़ा सा रीडिंग राइटिंग उसको बता देते हैं, ताकि अगली क्लास में जब जाएगा तो फिर उसकी सही पढ़ाई शुरू होगी, तो उससे कम से कम ये डेफिशिएंट महसूस ना करें। तो हमारे यहाँ तो बस अल्लाह ये सदाब से हमें निकाल सकता है, और अगर हमें एहसास आ जाए तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन जब सर आपके इस मुल्क से नहीं जा सकता। बिल्कुल सर, आपकी माशाल्लाह रेवोल्यूशनरी थॉट्स शुरू से थी, तभी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ मुझे पता है। एक लतीफा मैं सुनाता हूँ उसका। सही है सर। जब मैं नया इस सोचने आया तो मैं एक एजुकेशन अफसर कोई काम था, कोई उन्होंने इन्वाइट किया तो मैं गया, तो उनके और मेहमान भी आए हुए थे। तो जरा मेरी इंट्रोडक्शन था, उन्होंने क्या, बड़े अच्छे लोग आदमी थे, बड़े मेरे दोस्त भी थे। कहता है मीट माई फ्रेंड पेपर विंग कमांडर मोहम्मद अमीन। अच्छा। ये बात इसमें सप्लाई होती थी, तो मैं पास से गुजरता था तो ये मुंह दूसरी तरफ करते थे, मुझे सलाम ही नहीं करते थे। ओह माय गॉड। तो मैं ज्यादा कर लिया एक बार के बाद, छोड़ो दफा कर, चलो यूनिवर्सिटी चले जाओ, ये इस बेइज्जती से दफा करो। फिर मुझे ख्याल आया कि यूनिवर्सिटी वाली कहेंगे कि इतनी शौक से गया था कि किस मुंह से वापस आ गया तू। तो मैंने कहा टेक इट इजी। तो नतीजा क्या हुआ कि जब अमेरिकन ने मुझे एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया तो इन्होंने मुझे सलामें करनी शुरू कर दी। जब अमेरिकनों ने मेरी इज्जत करनी शुरू कर दी तो मेरे अपने जो भाई थे इन्होंने भी हमें सलाम करना शुरू कर दिया। अच्छा सर ये बताइए, शुरू में जब सीए शुरू हुआ था तो उस वक्त फैकल्टी वगैरह क्या थी, कहाँ से आप लोग फैकल्टी को सिलेक्ट करते थे, और शुरू में आपको चैलेंजेस किया? अच्छा, सिलेक्ट हेडक्वार्टर में ही होता था। अच्छा, और आपको चैलेंजेस क्या होते थे सर शुरू में जब शुरू हुआ था फैकल्टी, ये सारा सिस्टम सीए का शुरू हुआ था, तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम्स आती थी, क्या चैलेंजेस आपको फेस होते थे? ना मुझे तो कोई चैलेंज नहीं फेस हुआ, बिकॉज आई वाज कॉम्पिटेंट टू डू द जॉब, मुझे कोई ऐसा। लेकिन हमारी शुरू में ना यानी इंजीनियरिंग फैकल्टी ज़रा कमजोर थी, तो वो आहिस्ता 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 बिल्ड करते 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 माशाल्लाह जब यहाँ से गया है सीएई, वी आर द बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन द होल ऑफ द कंट्री। नो डाउट, नो डाउट। और कोई बंदा एमएस से कम नहीं था फारग। जी जी। तो वो सिचुएशन अब हाँ, तो उसका नतीजा क्या था कि बाहर के कोई स्कॉलरशिप अप्लाई करता था तो हमारे बच्चों की वो टेस्ट वेस्ट नहीं देते थे, बिल्कुल वो डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लेते थे, ब्रिटेन में भी और अमेरिका में भी। ये क्रेडिट था सीआई का। बाकी भी लोगों का बगैर टेस्ट के वो किसी को एडमिट नहीं करते पूरे पाकिस्तान। लेकिन वो क्रेडिट अमेरिका
हेलो सर, सलाउद्दीन, मैं सर मैं रिंग करता हूँ उधर किसी को अभी। आई थिंक उनको भी थोड़ा रेस्ट का मौका दें, शायद उनका भी खाने वाने का टाइम हो। तो आई थिंक लेट्स वाइंड अप। फिर उनको ठीक है सर, रिक्वेस्ट हिम मे बी आफ्टर अ मंथ गेट हिम अगेन। ठीक है ना? ठीक है सर, मैं जरा उनके जो असिस्टेंट है उनसे जरा बात करता हूँ। हाँ, कर ले, उनको थैंक यू भी कर दें सबकी तरफ जी से। सर। अच्छा अच्छा, जरा बस लाइन पे लिया, जरा 5 मिनट बस सर को, उसके बाद खुदा हाफिज कह के जरा लाइन पे ला के फिर हम उनको सर को खुदा हाफिज कह देंगे। तो जरा लाइन पे ठीक है। ओके, थैंक यू। हाँ जरा देख लें। जी जी। अच्छा ज्वाइन कीजिए। हाँ हाँ, ज्वाइन कीजिए प्लीज। रिक्वेस्ट आपके नहीं है अभी तक। ही इज कमिंग ऑनलाइन सर। गुड। बस आप सही कह रहे हैं, अब उनको थोड़ा खुदाफिज आप सर हम सब का विल थैंक हिम एंड फॉर हिज वेरी वैल्यूएबल टाइम। हम सब की तरफ से सर आप कर दीजिए। ओके, आई विल डू दैट। और जब सब उनको गुड बाय कहें तो मे बी अपने कैमरे ऑन करने सब, सो दैट वी कैन सी एवरीवन। जी बिल्कुल दुरुस्त है जी। बस आ गए, रिक्वेस्ट आ गई, जस्ट अ सेकंड, ही विल बी देयर। जी सर, आई थिंक इज देयर। Gentlemen, now we are talking a lot about. I feel very grateful for this honor. So and if you have any question, even now, briefly, please, you can ask me. Otherwise, the meeting we are going to close. Sir, we are very thankful to you. So आपकी always बड़ी time जो है, is very valuable to all of us. May not to you, may not be to you, but to all of us. आपकी नसीहतें, आपकी बातें, अल्हम्दुलिल्लाह ये फिर वक्त, because we don't want to tire you, हम चाहते हैं कि आप अब रेस्ट करें, but we would like you to be with us every month, and inshallah I'm too old to do this. और नहीं सर, ਅਸੀਂ जबरदस्ती ले आएंगे तो आपको ले आएंगे। ये सारों की तरफ से मैंने आपको कहा कि ये कमर सर से हम नहीं छोड़ेंगे आपको, ठीक है, हम नहीं छोड़ेंगे आपको, और सर नहीं छोड़ांगे सी, we will not leave you, and we telling you we are very proud of you, honest to God। सारे मेरे साथी जो हैं, दोस्त हैं, हम सब की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। we very grateful to you and we are very pleased to see you sir। आपसे बात करके इतनी खुशी हुई है, you can't even imagine। So remember us in your prayers, we also remember you in our prayers। So inshallah Kareem sir, our young brother Salahuddin will again get in touch with you। फिर एक ये सेशन चलेगा सर, आपके साथ बहुत जरूरी है, आपकी शक्ल देखना बड़ा जरूरी है हमारे लिए। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह आपको। मेरी तरफ से भी आपका बहुत शुक्रिया, और मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि दिल की बात आज जो मैंने अपनी जिंदगी में हासिल की, माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे आपने उन ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया जो कि मैं अभी तक शायद कहीं भी नहीं। सर दिल को लगी है, दिल को लगी है सर, डोंट वरी। हम पुरानी बातें भी अब याद आनी शुरू हो गई हैं, अब रात को हम सोचेंगे काफी, और some good time thinking about it। अब दुआ करेंगे सर, ये मुल्क जो है सही रास्ते पे आ जाए, आमीन सर, ताकि अल्लाह की मखलूक जो है ये भी कोई अच्छे दिन देख ले। सर आप जैसे लोग हैं ना, और आपके शागिर्द भी हैं, इंशाल्लाह you will see things will you will see things will get better। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। भी मौका मिले आपको तो ये मुल्क जिन तकलीफों में मुब्तला है उसमें जितनी भी कंट्रीब्यूशन आपकी हो सके प्लीज इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच टू द होल कंट्री। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह सर।
Thank you. Thank you very much for giving me this sir. Allah Hafiz. opportunity. Allah Hafiz. Thank you very much. To salute you. Salute to you, sir. From my heart. Thank Allah you. बहुत शुक्रिया to you, sir. Wherever you are. All the best.